Hello students, let's see analytical solution of series LCR circuit. Okay, here you can see that AC voltage source is connected across a series combination of inductor, capacitor and resistor. Okay, so here I can say applied voltage source V is equal to what? Potential difference, or you can say sum of potential difference across inductor, capacitor and resistor, means VL plus VC plus VR. Okay, we already see it in a phasor diagram solution. So now we know that what is VL, it is L di by dt. VC is what? It is the Q by C, and potential difference across resistance is what? IR. Okay, so here now I can say that we know that rate of change of charge, okay, time rate of change of charge is what? Current I. So here I can say we know that I is equal to what? dq by dt. And what is di by dt? Rate of change of current. Okay, once again, if I am differentiating this current I with respect to time, then it becomes what? D by dt of what? dq by dt. Okay, so it is nothing but what? D square q by dt square. Okay, so here I can say di by dt is equal to what? D square q by dt square. Okay, now here let it be equation number 1. Okay, this one will be the equation number 2, and this one be equation number 3. So here I can say putting the value of equation 2 and 3 in equation 1 we get. ओके, इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं? इक्वेशन 1 में. चलो, तो उसका LHS क्या है? V. We know that V is equal to what? Vm sin omega t. So I can say Vm sin omega t is equal to what? L, and instead of di by dt I can write d square q by dt square. So L d square q by dt square. Okay, then after IR, instead of I can say dq by dt. Okay, R as it is. Then after plus we have what? Potential across capacitor, which is q by c. Okay, let it be equation number 4. So equation 4 represents what? Second order differential equation of charge. You can see that differentiation having what? 2 times, means second order differential equation over here we have. Okay, so now here let us assume the solution of this differential equation. Here let us assume that q is equal to what? Qm sin omega t plus theta. ये चार्ज का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशन मिला है उसका सॉल्यूशन सपोज कुछ ऐसा है जो हम लोग 11th स्टैंडर्ड में फोर्स्ड ओसिलेशन में हमने यही टाइप का इक्वेशन देखा था, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और हम लोग वहाँ पे सॉल्यूशन एज्यूम करते थे. सेम एज यहाँ पे ये सॉल्यूशन मैंने एज्यूम किया. ठीक है, तो ये क्यू है. अब आप देख सकते हो आपके पास जो ये इक्वेशन है, ठीक है, उसमें कौन से टर्म्स है? डी क्यू बाई डी टी और डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर है. ठीक है, अब मैंने क्यू एज्यूम किया, तो अगर डी क्यू बाई डी टी फाइंड आउट करूंगा तो डी क्यू बाई डी टी तो क्या होता है? करंट आई होता है. ठीक है, तो करंट आई इज इक्वल टू व्हाट? डी क्यू बाई डी टी. मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. देखो क्यू एम एज इट इज रहेगा बिकॉज इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड. साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos ओमेगा टी प्लस थीटा. प्लस ये जो आर्ग्यूमेंट है उसका फिर से हम लोग करेंगे, तो ओमेगा टी का कितना होगा? ओमेगा. ठीक है, टी का 1 हो जाएगा, ये आपका टाइम टी है. थीटा का कितना? 0. ठीक है, तो ये ओमेगा को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ये हो गया आपका इक्वेशन करंट का. ठीक है,
अब देखो डी क्यू बाई डी टी मिल गया, मुझे और एक टर्म फाइंड आउट करना है, कौन सा, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, दैट इज नथिंग वी कैन से इट इज व्हाट डी आई बाई डी टी। अब देख सकते हो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट डी आई बाई डी टी। तो मतलब ये करंट आई का जो ये इक्वेशन मिला उसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, ठीक है। चलो तो ये क्यू एम ओमेगा कॉन्स्टेंट्स एज इट इज, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा का क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कॉस का कितना होगा, माइनस साइन, तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये मैंने कर दिया माइनस साइन आगे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। अब देखो ये जो आर्ग्यूमेंट है उसका फिर से करेंगे, तो ओमेगा टी, ओमेगा एज इट इज, एक टी का कितना होगा, ये जो टी है उसका कितना होगा 1 और थीटा का कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये ओमेगा को अगर मैं यहाँ पे देखो आपके पास ओमेगा, यहाँ पे भी ओमेगा, तो मैं इसका डायरेक्टली लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो हियर आई हैव क्यू आई एंड डी आई बाई डी टी, means q dq by dt and d square q by dt square. Let it be equation number 5, 6 and 7. Okay, now here I am putting the value of equation 5, 6 and 7 in equation 4. So here we can say substituting equation 5, 6 and 7 in equation 4, we get, put over here, so LHS as it is Vm sin omega t, okay, L as it is d square q by dt square, we have the value of d square q by dt square which is over here, this one, okay. So d square q by dt square is what, minus qm omega square sin omega t plus theta, okay. So this one is the dq square q by dt square, then after we have what, plus dq by dt into r, so plus dq by dt, this one qm omega cos omega t plus theta, okay, into r, okay. And the last term we have is what, plus q by c, so plus q is what, qm sin omega t plus theta, so qm sin omega t plus theta divided by what, c, okay. Now here you can see that from this 3 term which is in RHS, I am taking qm into omega कॉमन, ओके। अब आप यहाँ पे ये लास्ट इक्वेशन में देख सकते हो, हियर इन न्यूमरेटर वी हैव ओनली qm, नो ओमेगा, so here I am multiplying and dividing the last term, okay, by omega, okay. अब qm ओमेगा बाहर कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, ये फर्स्ट टर्म में qm ओमेगा बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे एक ओमेगा बच जाएगा, ये l बचेगा, तो माइनस ओमेगा l साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, प्लस यहाँ पे देखो बच्चों ये क्यू एम ओमेगा जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है, कॉमन हो गया। आपके पास क्या बचा, आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ओके। एंड इन द लास्ट स्टेप यू कैन सी दैट वंस क्यू एंड ओमेगा becomes common, the remaining term is what, 1 over omega c sin ओमेगा टी प्लस थीटा, ओके। चलो तो आपके पास अब ये एक इक्वेशन है, ठीक है, LHS से आपका Vm sin ओमेगा टी, ओके। नाउ हियर यू कैन सी दैट इन द फर्स्ट टर्म एंड इन द थर्ड टर्म, ये दोनों टर्म आप देख सकते हो, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसमें साइन ओमेगा टी प्लस थीटा क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो उसमें से हम लोग साइन ओमेगा टी प्लस थीटा कॉमन निकालेंगे, तो ये क्यू एम ओमेगा एज इट इज, ठीक है। ये आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा पहले लिख देता हूँ, तो ये क्या होगा, आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ओके, प्लस ये वाला स्टेप देखो और ये वाला स्टेप, यहाँ से साइन ओमेगा टी प्लस थीटा कॉमन कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव है, ठीक है,
तो ये 1/ωc माइनस ये वाला स्टेप देखो फर्स्ट वाला में ये वाले माइनस ओमेगा है, ठीक है, और ये दोनों में से क्या होगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा कॉमन। ठीक है बच्चों, चलो आई होप यहाँ तक क्लियर है सबका। ठीक है, अब देखो मैं RHS को क्या कर रहा हूँ Z से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, बिफोर इट over here you can see that this term is minus omega, then this one is what 1/ωc. 1/ωc we can say that 1/ωc is what it is the capacitive reactance XC, and omega L is what it is the inductive reactance XL. तो पहले हम लोग इसको XC और XL के टर्म में लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया R cos ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस XC माइनस ये आपका XL to sin omega t plus theta. Okay, because here you can say that in a reason that XC is equal to what 1/ωc, that is capacitive reactance, and XL is equal to what omega L. Okay, now here its LHS is as it is Vm sin omega t. Okay, now here we multiply and dividing the RHS by what Z. So ओके बच्चों, सो ये LCR सर्किट में यहाँ पे Z से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो आपका LHS आपका एज इट इज Vm sin ओमेगा टी, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू Qm ओमेगा Z. ओके, और Z जो डिवाइड कर रहे हैं वो इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते रहे, सो R बाय Z, ठीक है, cos ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस XC माइनस XL by Z sin omega t plus theta. चलो बच्चों, I hope it is clear for you guys. Okay, now this term is what R by Z, and look at this term XC minus XL by Z. Z is what it is the impedance. You have to remember that. Here I can say multiplying and dividing by multiplying and dividing by Z over here, which is what impedance of the LCR series circuit. Okay, so here I can say from impedance diagram, which will be already learned in a phasor diagram solution method. ना phasor diagram solution method में impedance diagram देखा था, so here I can say from impedance diagram, अगर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करता हो, ठीक है, वी नो दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये सपोज आपका फेस पाई है, तो ये आपका अपोजिट क्या होता है XC माइनस XL. ओके, दिस एडजेसेंट इज R and the hypo is what Z. So here from this impedance diagram you can say that R by Z, it is what cos phi in this triangle, cos phi is what R by Z. और अगर यही ट्राइंगल से हम लोग साइन फाई फाइंड आउट करते हैं, तो साइन फाई क्या होगा अपोजिट अपन हाइपो, दैट इज व्हाट XC माइनस XL बाय Z. ओके, सो हियर इंस्टेड ऑफ R by Z आई एम पुटिंग cos phi, and instead of XC minus XL by 2 I am taking what sin phi. So here I can say Qm omega Z, R by Z is what cos phi, cos omega t plus theta as it is, plus XC minus XL by Z, it is what it is a sin phi, so sin phi into sin omega t plus theta as it is. Okay, now here you can say that this equation is equivalent to what cos A cos B. This is equivalent to, I can say, cos A cos B.
ये आप देख सकते हो, ये आपका टर्म जो है कॉस ए हो जाएगा, ये कॉस बी हो गया, प्लस ये क्या हो गया साइन ए, और ये और क्या वाला साइन बी। ठीक है, तो अगर अभी कभी आपके पास ये वाला फॉर्म होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ऑब्वियसली ये क्या होता है कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो आपका देखो फाई है वो आपका ए है, और ओमेगा टी प्लस थीटा जो है वो आपका क्या है बी है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो क्यू एम ओमेगा जेड क्या होगा, देखो कॉस ए माइनस बी मीन्स कॉस फाइव माइनस बी, बी आपका कितना है ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, चलो अब ये वाला जो स्टेप है ना बच्चों, कॉस जो होता है, कॉस कैसा फंक्शन होता है, कॉस इवन फंक्शन होता है। ठीक है, आप कॉस माइनस फाइव को कॉस फाइव लिख सकते हो। ठीक है, या कॉस फाइव को कॉस माइनस फाइव भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये ऐसे है। ठीक है, ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू इन LHS वी हैव व्हाट Vm sin ओमेगा टी। अब देखो बच्चों, अगर ये वाला आपका LHS क्या है Vm sin ओमेगा टी है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ Vm sin ओमेगा टी, ओके, आई कैन से ये आपको Vm sin ओमेगा टी है। ठीक है, इसको कॉस के फॉर्म में लेके आ रहा हूँ टू कंपेयर दी फेज, फेज कंपेयर करने के लिए इसको कॉस के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो बच्चों कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू क्या होता है, ऑब्वियसली ये कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू को आप लिख सकते हो कॉस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, जैसे कि मैंने बताया कॉस कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, साइन ओमेगा टी पाई बाई टू पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है कॉस पॉजिटिव रहेगा, तो उसका आंसर रहेगा साइन ओमेगा टी। तो इंस्टेड ऑफ साइन ओमेगा टी आई कैन राइट कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ओके, so here I am writing Vm cos omega t minus pi by 2 instead of this sin omega t. Okay, now compare the both sides over here, so you can see that, so here I can say Vm is equal to what, Qm omega z. Okay, we know that Vm is what in LCR series circuit Im z, and that is equal to what Qm omega z. So I can say Im is equal to what Qm into omega. Here if we compare the phase, then you can see that this phase is what omega t minus pi by 2, and here I have what omega t plus theta minus pi. So here I can say minus pi by 2 is equal to what थीटा माइनस फाइव। ओके, दोनों को फेस कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो माइनस फाइव बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा थीटा माइनस फाइव। तो अगर यहाँ से थीटा को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो क्या होगा, ये जो थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फाइव इस तरफ आ जाएगा, यानी कि माइनस फाइव बाई टू प्लस फाइव, और यू कैन से फाइव माइनस फाइव बाई टू, ये हो गया आपका थीटा। ठीक है, अब करंट का इक्वेशन हमारे पास था। ठीक है, करंट आई का इक्वेशन, आई अपना क्या था डी क्यू बाई डी टी था। ठीक है, हमने क्यू एज्यूम किया था कि क्यू कितना है, क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है। ठीक है, इसीलिए हमारा करंट क्या आया था क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा आया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन, ये जो आपका इक्वेशन था वो इक्वेशन नंबर 6 था आई थिंक। ठीक है, करंट का जो इक्वेशन था वो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 6 आपका आई डी क्यू बाई डी टी ये वाला मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ये क्यू एम ओमेगा है वो क्या है आई एम है, तो इसको मैंने कर दिया आई एम। ठीक है, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, तो कॉस ये ओमेगा टी प्लस जो थीटा है वो थीटा तो कितना है फाइव माइनस फाइव बाई टू है, तो मैं इसको कर देता हूँ फाइव माइनस फाइव बाई टू। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो कॉस है वो कॉस कैसा फंक्शन है, कॉस इवन फंक्शन है। सो आई कैन राइट कॉस माइनस फाइव इज इक्वल टू व्हाट कॉस फाइव। सो ये आपका स्टेप क्या होगा आई एम
कॉस, इसको मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो बच्चों ये π/2 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव है, कॉस π/2 माइनस ओमेगा टी। देखो π/2 माइनस कोई एंगल है तो क्या बन जाता है, साइन बन जाता है। तो ये क्या बन रहा है, आई एम साइन, क्या होगा ये, ओमेगा टी प्लस फाइव, दैट इज व्हाट apparent I, and here we know that voltage source is what Vm sin omega t. So V and I, okay, both having a phase difference what phi between them. Okay, अगर इसको डिटेल में सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि cos आपका जो था टर्म ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस π/2 है। ठीक है, इसको हमने क्या लिखा था, π/2 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो cos यहाँ से आप माइनस कॉमन कर सकते हो, π/2 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। माइनस कॉमन करने पे भी आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि cos माइनस फाइव क्या होता है, cos फाइव ही होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, π/2 प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो π/2 पे फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है बच्चों, तो cos का साइन हो जाएगा, और ये आपका ओमेगा टी प्लस फाइव एज इट इज। इसको आप पूरा कोई एंगल थीटा डैश मान सकते हो। ठीक है, तो π/2 cos π/2 माइनस थीटा डैश कितना होगा, साइन थीटा डैश होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फेज की, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस π/2 इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, नाउ लेट्स सी द वेवफॉर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट व्हिच आर इन फेज ओवर हियर। ओके, चलो बच्चों, तो वोल्टेज के वेवफॉर्म्स तो हमें पता है, ये हो गया वोल्टेज का वेवफॉर्म, मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको मैं बोल देता हूँ V। अब V और I के बीच में बच्चों फेज डिफरेंस कितना है, फाइव जितना फेज डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो ये फेज डिफरेंस कितना आया, ओमेगा टी प्लस फाइव जितना है। ठीक है, तो अगर मैं फाइव जितना फेज डिफरेंस ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, तो कुछ साइकिल जो होगी करंट की वो पहले खत्म होगी समहाउ, फेज डिफरेंस फाइव जितना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करंट आई का फेज डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हो, ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, फाइव जितना होगा। इसको फर्दर मैं बैकवर्ड एक्सटेंड करूँ तो वो कुछ ऐसे आपको दिखेगा, जिसके बीच में फेज डिफरेंस क्या है, फाइव है। आप कोई भी इंस्टेंट पे देखोगे ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, फाइव रहेगा। ये आपका करंट का और वोल्टेज का वेवफॉर्म बन जाएगा। ठीक है।